तो दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता हमारे देश के लिए यानी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे चांद की धरती के बहुत सारे राज जो जिससे आज तक हम बिल्कुल भी अनजान थे, वो सारे राज राज खुल जाएंगे और जो रहस्य है वो खुल जाएगा। और पूरी दुनिया हमसे कांटेक्ट कर रही है ताकि वो सारे डिटेल्स जो हमारा चंद्रयान 3 जिसमें कि लैंडर और रोवर हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं उनकी दरकार बहुत बढ़ गई है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप पूरे अंत तक देखें। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा चंद्रयान 3 है उसमें कितने पेलोड्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, और वो सारी यूनिट्स क्या क्या किस किस तरीके से काम करती हैं, और जो हमारा चांद की सतह है वो कैसी है, और इस पे आगे क्या होने वाला है, और ये जो हमारे लैंडर और रोवर है ये क्या क्या ढूंढने वाले हैं, क्या क्या पता करने वाले हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें एंड एंजॉय द वीडियो। सो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 इज अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। नाउ लेट्स डिस्कस दैट व्हाट चंद्रयान 3 इज डूइंग since last 24 hours, right? So before that, let's have a quick understanding about what sort of payloads that Chandrayaan 3 has. Now look at here, if you are able to see the diagram here. So basically this Chandrayaan 3 has this as a propulsion unit, and this is a lander, and inside this lander there is a rover. Now let me talk about the seven payloads that this entire Chandrayaan 3 has. Now see, there are 4 payloads in the lander and 2 payloads in the rover which is walking on the moon right now, and 1 payload in this propulsion unit. And due to the communication among all the 3, we are getting snaps and images from the surface of moon, right? Now अब देखिए कि इसमें जो 4 पेलोड हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमारे लैंडर में हैं, ये कौन कौन से हैं? एक जिसका नाम है रंभा। नाउ रंभा स्टैंड्स फॉर रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। मीन्स ये क्या करेगा, ये रंभा जो है ये जो एटमॉस्फेयर है मून का वो उसके बारे में स्टडी करेगा और उसकी सारी डिटेल्स हम तक पहुंचाएगा, राइट? दूसरा जो इसका पेलोड है, another पेलोड इज इल्सा। नाउ इल्सा इज बेसिकली फॉर checking the stability of land on moon. So basically if the land of moon vibrates, so how many times it vibrates, so it will gather all these kinds of seismic details। ठीक है कि भाई आखिर इतना भूकंप तो हम नहीं कहेंगे इसे, लेकिन चांद का भूकंप कहेंगे, राइट? सो दिस इज बेसिकली फॉर measuring and calculating and sending the details of moon quakes, right? It is moon quakes. So moon quake के बारे में ये स्टडी करेगा। और जो तीसरा है दैट इज चास्ट। चास्ट क्या करेगा? चास्ट इज बेसिकली फॉर चंद्रा's thermophysical test and temperature. So basically it will test the temperature of the soil and atmosphere of moon, right? Now the fourth one is basically shape, जिसे हम shape कहते हैं। ये सारे चारों पेलोड जो हैं ये बेसिकली ये लैंडर का पार्ट है, right? So what shape will do? Shape will provide the spectropolarimetry of habitat planet. So basically what it will do, it will look for the condition of that is there any possibility of life in any other planet, right? So that's the reason this shape has been a fourth payload in that, right? So ये इसमें ये देखेगा कि क्या दूसरे ग्रह हैं जहाँ पे जीवन की संभावना हो सकती है। Is there in any life that exists on any other planet in the galaxy, right? So these are the 4 payloads of lander,
अब रोवर क्या करेगा? रोवर का काम ये है कि इट विल बेसिकली वॉक ऑन मून्स सरफेस एंड it will check the soil and it will send the details of soil, means how much minerals are there, what kind of minerals are there. Now the another thing is rare earth metal, so it will look for the possibilities and basically the content of rare earth metals. जो rare earth metals होते हैं वो बहुत ही important होते हैं, राइट? अब रेयर अर्थ मेटल्स का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही वाइड है. Rare earth metals are used in LED screen manufacturing, then electronic motherboards, then in electrical vehicle and phosphor glasses, right? So these things are very important. So that's the reason we require all these details. And Chandrayaan 3 is providing all those details and it has started doing that work. अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अभी तक कोई भी दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा नहीं था, तो इसी वजह से ये सारी डिटेल किसी के पास नहीं थी. अब जैसे जैसे ये डिटेल मिलती जाएगी, अब देखिए कि इंडिया की वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है कि पूरी वर्ल्ड की कंट्री वो हमसे भी डिटेल मांगेंगी, कोई डिटेल दे दो, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चंद्रयान 3. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ सम अदर फिगर्स दैट वी हैव. If you look at the position of rare earth metal, so see, presently China tops the list of the. So friends, Chandrayaan 3 is a huge success for India. Now let's discuss that what Chandrayaan 3 is doing since last 24 hours, right? So before that, let's have a quick understanding about what sort of payloads that Chandrayaan 3 has. Now look at here, if you are able to see the diagram here. So basically this Chandrayaan 3 has this as a propulsion unit and this is a lander, and inside this lander there is a rover. Now let me talk about the 7 payloads that this entire Chandrayaan 3 has. Now see, there are 4 payloads in the lander and 2 payloads in the rover which is walking on the moon right now, and 1 payload in this propulsion unit. And due to the communication among all the 3, we are getting snaps and images from the surface of moon, right? Now अब देखिए कि इसमें जो 4 पेलोड हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे लैंडर में हैं, ये कौन कौन से हैं? एक जिसका नाम है रंभा. नाउ रंभा स्टैंड्स फॉर रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. मीन्स ये क्या करेगा? ये रंभा जो है, ये जो एटमॉस्फेयर है मून का, वो उसके बारे में स्टडी करेगा और उसकी सारी डिटेल्स हम तक पहुंचाएगा, राइट? दूसरा जो इसका पेलोड है, another पेलोड इज इल्सा. नाउ इल्सा इज बेसिकली फॉर चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ लैंड ऑन मून. सो बेसिकली if the land of moon vibrates, so how many times it vibrates, so it will gather all these kinds of seismic details. ठीक है कि भाई आखिर इतना भूकंप तो हम नहीं कहेंगे इसे, लेकिन चांद का भूकंप कहेंगे, राइट? सो दिस इज बेसिकली फॉर measuring and calculating and sending the details of moon quakes, right? It is moon quakes. तो moon quake के बारे में ये स्टडी करेगा. और जो तीसरा है that is CHAST. CHAST क्या करेगा? CHAST is basically for Chandra's thermophysical test and temperature. So basically it will test the temperature of the soil and atmosphere of moon, right? Now the fourth one is basically shape, जिसे हम shape कहते हैं. ये सारे चारों पेलोड जो हैं, ये बेसिकली ये लैंडर का पार्ट है, राइट? सो व्हाट शेप विल डू? शेप विल provide the
polarimetry of habitat planet. So basically what it will do, it will look for the condition of that is there any possibility of life in any other planet, right? So that's the reason this shape has been a fourth payload in that, right? So ये इसमें ये देखेगा कि क्या दूसरे ग्रह हैं जहाँ पे जीवन की संभावना हो सकती है. Is there any life that exists on any other planet in the galaxy, right? So these are the four payloads of lander. अब रोवर क्या करेगा? रोवर का काम ये है कि इट विल बेसिकली वॉक ऑन मून्स सरफेस एंड it will check the soil and it will send the details of soil, means how much minerals are there, what kind of minerals are there. Now the another thing is rare earth metal, so it will look for the possibilities and basically the content of rare earth metals. जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? अब रेयर अर्थ मेटल्स का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही वाइड है. Rare earth metals are used in LED screen manufacturing, then electronic motherboards, then in electrical vehicle and phosphor glasses, right? So these things are very important. So that's the reason we require all these details, and Chandrayaan 3 is providing all those details and it has started doing that work. अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अभी तक कोई भी दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा नहीं था, तो इसी वजह से ये सारी डिटेल किसी के पास नहीं थी. अब जैसे जैसे ये डिटेल मिलती जाएगी, अब देखिए कि इंडिया की वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है कि पूरी वर्ल्ड की कंट्री वो हमसे भी डिटेल मांगेंगी, कोई डिटेल दे दो, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चंद्रयान 3. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ सम अदर फिगर्स दैट वी हैव. If we look at the position of rare earth metal, so see, presently China tops the list of the availability of rare earth metal at 44 billion metric ton, okay? And then Vietnam, and then Israel, and then Brazil, and then Russia and India. So India is basically the fourth, 1 2 3 4, the fifth. India is basically the fifth country which produces rare earth metal, but still they have not been exploited yet. अभी भी हम उसका यूज पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं, राइट? और इस लिस्ट में अगर आप देखें तो यूएस का जो स्थान है वो बाद में आता है, इंडिया के बाद में आता है, राइट? सो बेसिकली पोजीशन इज फर्स्ट इज ऑफ कोर्स चाइना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ पोजीशन पे यूएस आता है, राइट? अब देखिए, सो बेसिकली फ्रॉम सन इफ वी लुक एट दैट, सो हमें क्या दिखेगा? जब सन की लाइट पड़ती है मून पे, जब सन की लाइट पड़ रही है मून पे, तो आप देखिए कि इसमें ये जो हाफ पोर्शन है, ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन जो है, इसका टेम्परेचर तो 54 डिग्री सेल्सियस है लगभग, लेकिन ये जो दक्षिणी ध्रुव है, बेसिकली द साउदर्न पोलर रीजन, उसका टेम्परेचर लगभग -248 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा हो सकता है. अब चूंकि अभी तक आज तक कोई भी स्पेस क्राफ्ट इस एरिया पे पहुंचा नहीं था, तो इस वजह से इसका हमें एक प्रॉपर प्रूफ नहीं था. तो इसमें जो टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस लगे हुए हैं हमारे चंद्रयान 3 में, वो इसी के बारे में डिटेक्ट करेंगे कि कितना टेम्परेचर है लगभग, राइट? और उन टेम्परेचर पे हम किस तरीके से सस्टेन करेंगे, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इज देयर एंड हाउ वी कैन मेक इट बेटर. So all these details will be shared and are being shared by Chandrayaan 3. Okay. Now let's still give credit to our Indian space astronaut, Mr. Rakesh Sharma. Right.
So he was the first Indian who is credited to be on space from India, right? He is the first Indian astronaut who went to space with the support of and the collaboration of ISRO and सोवियत यूनियन, रशिया के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ था इंडिया का, उसके साथ ये गए थे. एंड ही अचीव द अवार्ड ऑफ हीरो ऑफ सोवियत यूनियन, राइट. रशिया ने इन्हें रशिया के हीरो के रूप में अवार्ड भी दिया था. I hope the point must be clear. So we salute to this Indian scientists and astronauts. Now look at here basically. Now let's talk about the craters which are present there on the surface of moon. अब ये craters जो हैं, ये craters कैसे बनते हैं? So basically there are a lot of meteoroids that collide and that strike and smashes the surface of moon, right, in this way. So आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने गड्ढे हैं. वो जो चांद पे जो गड्ढे होते हैं उन्हीं को हम क्रेटर्स कहते हैं. तो जब धरती से हम देखते हैं तो चांद पे जो धब्बे दिखाई पड़ते हैं ना, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि भाई चांद में दाग है, तो वो दाग यही है, इसी की वजह से है. अब क्रेटर्स जहाँ पड़ेंगे तो वहाँ पे लाइट जाएगी नहीं. जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कुआं है, कुआं खुद गया है, तो कुआं में तो सनलाइट जाती नहीं है, तो वहाँ पे अंधेरा रहता है, राइट. तो ये इस तरीके से करीब मिलियंस क्रेटर्स हैं मून पे. अब बताइए, अब देखिए मून करता क्या है. मून सेव्स द अर्थ. हाउ इट सेव्स द अर्थ? बिकॉज एवरी टाइम ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ meteorites and comets, they strike the moon. अब वो सारे अगर मून ना होता तो धरती पे गिरते, और इसी वजह से क्या है कि चांद जो है वो धरती को बचाता है इन सब से. नाउ यू सी दैट दिस नेचुरल सैटेलाइट विच इज कॉल्ड एज मून, ये मून धरती को यानी अर्थ को कितने तरीके से सेव कर रहा है कि इतने सारे, अगर ये मून ना होता तो ये सारे उल्का पिंड, ये कॉमेट्स हैं, ये मीटेरोइड्स हैं, ये डायरेक्टली अर्थ पे गिर जाते और उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता था. इसी वजह से अब देखिए नेचर किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करती है कि अभी तक पृथ्वी पे ही जीवन की उत्पत्ति की खोज हो चुकी है. तो पृथ्वी पे क्यों खोज हुई है उसका कारण समझिए. उसका कारण ये है कि हर तरीके से नेचर जो है वो पृथ्वी को सेव कर रही है. ये बात अलग है कि अब हम दूसरे ग्रहों पे भी जीवन की उत्पत्ति की खोज कर रहे हैं, लेकिन ये आप सोचिए कि पृथ्वी कितनी तरीके से सेव है. हमारे पास आयनोस्फेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर्स हैं, हमारे ओजोन लेयर है, ये सब किस तरीके से हमें सेव कर रही हैं. ठीक है, अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो जो भी कॉमेट्स हैं या जो भी हमारे उल्का पिंड हैं, ये डायरेक्टली हमारे अर्थ पे हिट कर जाते. बहुतों को जितने भी हैं उनको तो ये चांद ऑटोमेटिकली बीच में एक शील्ड की तरह काम करता है, एक ढाल की तरह काम करता है और बचा ले जाता है धरती को. और बाकी जो दूसरे होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर से आकर के जल के एटमॉस्फेयर में ही नष्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब प्रॉब्लम तब हो सकती है जब कोई उल्का पिंड अगर एटमॉस्फेयर पहले तो मून से बच करके आया धरती पे और उसके बाद एटमॉस्फेयर से भी बच गया, तब जा करके उस दिन धरती को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा खतरा होगा, राइट. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से धरती जो हमारी सेव है. तो वी नीड टू बी वेरी थैंकफुल टू द मून, राइट. सो इट सेव्स अस against all these meteorites and comets. I hope आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा. If you find it informative, so kindly like and subscribe my channel and you can get almost all information regarding this Chandrayaan 3 and other scientific activities, right. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए and kindly comment and you can ask any kind of questions if you have, and kindly write the topic also on which you want a video. And till then, take care, bye bye, and thank you for watching the video. Thanks a lot.